اب بات کریں گے محکمہ ماحولیات کی غفلت ہے یا پھر مبینہ نااہلی۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں فیکٹریوں اور بھٹوں سے نکلنے والا دھواں بیماریاں پھیلانے لگا۔ رحیم یار خان آج بھی جنوبی پنجاب کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس 270 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ ماحولیات کی غفلت ہے یا پھر مبینہ نااہلی۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں فیکٹریوں اور بھٹوں سے نکلنے والا دھواں بیماریاں پھیلا رہا ہے۔ رحیم یار خان آج بھی جنوبی پنجاب کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر موجود ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 270 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں اسموک کے خطرات منڈلانے لگے۔ جنوبی پنجاب فضائی آلودگی کی لپیٹ میں آ گیا، مگر محکمہ ماحولیات اور اضلاع کی انتظامیہ خواب خرگوش سے بیدار نہیں ہوئے۔ جنوبی پنجاب کے آلودہ ترین شہروں میں رحیم یار خان کا پہلا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 270 پوائنٹس ریکارڈ۔ بہاولپور 265 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ ملتان 196 پوائنٹس کے ساتھ جنوبی پنجاب کا تیسرا آلودہ ترین شہر۔ خانوال کا ایئر کوالٹی انڈیکس 184، سرگودا کا 157 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ مظفر گڑھ 181، ڈی جی خان 172 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھٹوں اور فیکٹریوں کے زہریلے دھوئیں سے شہری دمہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بھٹے اور دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں جدید ٹیکنالوجی پر منتقل نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے اسموگ میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اسموگ کا باعث بننے والے بھٹوں اور فیکٹریوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ملتان میں 26ویں آئینی ترمیم کی کامیابی پر پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تشکر۔ کارکنان کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، مٹھائی بھی تقسیم کی۔ پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے سب جماعتوں کو ساتھ ملا کر یہ اہم کام سر انجام دیا۔ لیا میں پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام یوم تشکر کی تقریب سجائی گئی۔ آئین میں ترمیم منظور ہونے پر نوشہرہ ہاؤس میں تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں ضلعی صدر پیپلز پارٹی ملک ریاض سامٹیا سمیت دیگر شریک۔ اس موقع پر شرکاء کا کیا کہنا ہے، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ 24ویں آئینی ترمیم پر پاکستان پیپلز پارٹی اور خصوصی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ 24ویں آئینی ترمیم جو پاکستان میں جوڈیشل مارشل لگا ہوا تھا، اس کے خاتمے کے لیے بہت ضروری تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم بہت ضروری تھی، اس لیے آج ہم پارٹی کی ہدایت پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس خوشی کو، آئین کی بحالی کو۔ پہلے تو میں آپ میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نوشہرہ ہاؤس پہ ہماری اس تقریب میں تشریف لائے، آپ کی مہربانی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آج ہم یہاں پہ اظہار تشکر منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں 24ویں آئینی ترمیم کے موقع پر۔ ہم چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ جو ترمیم منظور ہوئی ہے، اس میں سب سے زیادہ جو محنت ہے، جو جدوجہد ہے، وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے، جنہوں نے سیاسی مارشل کو ختم کیا۔ جیسا کہ بھائی پہلے بتا رہے تھے، جو بھی چیف جسٹس آتا تھا وہ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتا تھا۔ میرے حساب سے یہ جو راستہ ہے اب عینی طریقے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے روک دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے عمل میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے مدبرانہ کردار اور ان کی مثالی قیادت پر نہ صرف پوری پارٹی کو فخر ہے، بلکہ ہر ذی شعور پاکستانی ان کا معترف ہے۔ ہم میثاق جمہوریت میں کیے گئے عدالتی اصلاحات کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ اور سینٹ دونوں ایوانوں سے منظور ہونے پر تمام اتحادی جماعتوں اور شرکاء مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمیں بے حد خوشی ہوئی ہے کہ اجتماعی حکمت عملی اور دانائی 26ویں آئینی ترمیم بل کی حمایت میں اکٹھی ہوئی۔ اکثریت ایوان نے ترمیمی بل کے حق میں ووٹ دیا، جو ہمارے پارلیمنٹیرینز کی سنجیدگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم تمام دوسری جانب سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی سرگودا میں پریس کانفرنس۔ ان کا کہنا تھا، نئے چیف جسٹس کو ویلکم کہتا ہوں، جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ نئے آنے والے چیف جسٹس کو اللہ تعالیٰ آئین اور قانون پر چلائے۔ مزید کیا کہا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ جمعیت میں آنے کے لیے تو میں پوری امت کو دعوت دیتا ہوں۔ اگر ہم نے یہ راستہ چنا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے چنا ہے، تو دوسروں پر کیوں ہم دخل کریں گے؟ ہر ایک کے لیے سعادت سمجھیں گے۔ لیکن بہرحال وہ بڑے آدمی ہیں، پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں اور اب وہ چلے گئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ معمول کا نظام ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں ان تبدیلیوں کو غیر معمولی کیوں پیش کیا جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے بات۔ اور جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں خوشیاں نصیب کرے،
जो आ गए हैं अल्लाह ताला उनको अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू फरमाए और सुरखरूई के साथ अपनी जिम्मेदारियों से अहदेदार होने की अल्लाह उनको तौफीक अता। 56 क्लासेस थे जो गवर्नमेंट ने पेश किए थे पहले मसवदे में, 22 तक आ गए, 22 तक। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, पहला ड्राफ्ट भी चेक कर ले, आखिरी भी चेक कर ले, वो तो ऐसी चीज़ नहीं है। फिर हमने 5 उसमें डाले हैं और 27 क्लासेस का एक ड्राफ्ट जो है वो बाकायदा असेंबली से मंजूर हुआ, सेनेट से मंजूर हुआ और अब वो एक आइन का हिस्सा बन गया है। जनूबी पंजाब के इम्तहानी सेंटर्स असातिज़ा की राह तकने लगे। असातिज़ा का पंजाब टीचर्स अलायंस की कॉल पर TNA टेस्ट का मुकम्मल बाइकआउट। कई सेंटर्स पर तो इम्तहान लेने वाला अमला भी न पहुंचा। टीचर्स यूनियन के रहनुमा कहते हैं जब तक टेस्ट के वाज़ेह मकासद सामने नहीं आएंगे हम टेस्ट नहीं देंगे। जनूबी पंजाब भर के असातिज़ा TNA टेस्ट देने से इंकारी। टीचर्स यूनियन ने TNA टेस्ट का बाइकआउट कर दिया। लोधरा में इम्तहानी सेंटर्स पर टेस्ट देने कोई टीचर नहीं आया। लोधरा जिला में 11 सेंटर कायम किए गए थे। सदर टीचर्स यूनियन राना फारूक का कहना था कि हुकूमत पहले पॉलिसी वाज़ेह करे फिर टेस्ट ले। शुजाबाद में 4 इम्तहानी सेंटर्स बनाए गए जहाँ 60 टीचर्स ने टेस्ट देना था। सेंटर्स पर अमला भी मौजूद था मगर टेस्ट देने कोई टीचर न पहुंचा। अब्दुल हकीम में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के बाहर असातिज़ा ने एहतजाज किया। असातिज़ा ने स्कूलों की निजीकारी और लीव इनकैशमेंट कानून के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे मुतालिबात ना माने गए तो मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। बहावलनगर में खातीन असातिज़ा ने TNA टेस्ट का बाइकआउट करके सेंटर्स के बाहर एहतजाज किया। TNA टेस्ट लेने वाला अमला भी सेंटर्स पर ना पहुंचा। PST और EST असातिज़ा का टेस्ट लिया जाना था। असातिज़ा का कहना था कि स्कूल्स की निजीकारी किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत सरकारी असातिज़ा को खत्म करना चाहती है। डाहरावाला में भी असातिज़ा ने हुकूमत की नई पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। असातिज़ा ने कहा कि हुकूमत TNA टेस्ट के नाम पर असातिज़ा की तजलील बंद करे। TNA टेस्ट के जरिए हमें नौकरी से निकालने का बंदोबस्त हो रहा है। हुकूमत फैसला वापस ले वरना स्कूल्स में पढ़ाई का बाइकआउट रहेगा। ईसा खेल में भी टीचर्स ने TNA टेस्ट का बाइकआउट कर दिया। खातिन टीचर्स का एहतजाज करते हुए कहना था कि भर्ती के वक्त हम टेस्ट इंटरव्यू देकर आते हैं, बगैर कुछ बताए अचानक से ये टेस्ट सरासर ज्यादती है। जब तक टेस्ट के वाज़ेह मकासद आगाह नहीं किए जाएंगे हम टेस्ट नहीं देंगे। जामपुर में असातिज़ा ने गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई स्कूल में पुरअमन एहतजाज किया। असातिज़ा का कहना था कि हुकूमत TNA टेस्ट लागू करके स्कूल्स को प्राइवेट करना चाहती है। हुकूमत ने मुतालबात पूरे न किए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। पूरे वाला में असातिज़ा ने स्कूल्स में तालाबंदी करके MC हाई स्कूल में एहतजाज किया। टीचर्स का मौक़िफ़ था कि हुकूमत असातिज़ा को नौकरियों से निकाल कर तालीमी इदारों को प्राइवेटाइज करना चाहती है। TNA टेस्ट किसी सूरत भी नहीं होने देंगे। तरंडा मोहम्मद पनाह में इंतजामिया तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाने में नाकाम। शहर के हम सड़कों पर तजावुजात की भरमार है। मुतादिद बार ऑपरेशन के बावजूद तजावुजात का खात्मा न हो सका। इंतजामिया की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। तरंडा मोहम्मद पनाह में तजावुजात माफिया बेलगाम। जिले इंतजामिया तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाने में नाकाम। शहर की अहम शहरों पर मुतअद्दिद बार ऑपरेशन किया गया मगर तजावुजात का खात्मा न किया जा सका। इन बाजार रोड, सिद्धू वाली रोड और KLP रोड पर तजावुजात की भरमार है। शहर में तजावुजात के बायस कुशादा सड़कें तंग हो गई। शहरियों का कहना है कि सड़कों पर पैदल चलना भी मुहाल हो गया। मुतअद्दिद बार निशानदाही के बावजूद तजावुजात का खात्मा ख्वाब बन चुका। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और AC लियाकतपुर अपने दफातर तक महदूद हैं। शहरी कहते हैं कि बहुत सारे दुकानदारों ने सड़कों पर थड़े बना लिए हैं। अपना सामान भी सड़कों पर सजाया हुआ है। तजावुजात के बायस राहगीरों और दुकानदारों में झगड़े मामूल बन गए हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और कमिश्नर बहावलपुर से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर सड़कों से तजावुजात का खात्मा करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। शहरी ओलिया में सब्जी और फलों के दाम बेलगाम। सरकारी नर्ख और मार्केट रेट्स में वाज़ेह फर्क बरकरार। जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। मुल्तान में सब्जियों और फलों की मार्केट में महंगाई की लहर बरकरार। सरकारी नरखों और मार्केट रेट दोनों में इजाफा। जिले इंतजामिया सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाने में भी नाकाम। सरकारी नीतनामा में अदरक 700 लहसुन 580 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 900 और लहसुन 730 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में सब्ज मिर्च 170, प्याज 118, टमाटर 114 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। शिमला मिर्च 330, शलजम 160 और भिंडी 200 रुपए फी किलो दस्तयाब। बंद गोभी 170, करेले 200 और टिंडे 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में अंगूर 500, पपीता 450 और आड़ू 400 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। सेब 300, अमरूद 250, शकरी 100 रुपए फी किलो फरोख्त। जापानी फल 350, गर्मा 300 और मौसमी 120 रुपए फी किलो हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ जवाना बिलाल, रोही, मुल्तान। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी। सोना मुल्क की तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 3500 रुपए का इजाफा हो चुका है।
24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 2,86,500 रुपए हो गई। 22 कैरात सोना 2,62,500 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। 24 कैरात सोना 24,500 रुपए फी ग्राम हो गया है और 22 कैरात सोने की फी ग्राम कीमत 22,500 रुपए हो गई। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान का बलूचिस्तान पंजाब को मिलाने वाली मरकजी शाहराह का विजिट। डिप्टी कमिश्नर ने कौमी शाहराह पर ट्रैफिक ब्लॉक रहने और हादसात का नोटिस लिया। मोहम्मद उस्मान खालिद ने NHA अफसरान को कौमी शाहराह की तामीर और मरम्मत का काम फौरी शुरू करने का हुक्म दिया। कोहे सुलेमान के कबाली इलाके बोटा से खुर तक बलूचिस्तान पंजाब को मिलाने वाली कोयटा रोड टूट फूट का शिकार। कौमी शाहराह पर आए रोज ट्रैफिक ब्लॉक रहना और हादसात मामूल बन गए हैं। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद कौमी शाहराह कोयटा रोड की मखदूश सूरत हाल का नोटिस लेते हुए बोटा खुर पहुँच गए। उन्होंने शाहराह की अबतर सूरत हाल पर NHA अफसरान से फौरी राब्ता किया और शाहराह की तामीर और मुरम्मत का काम जल्द शुरू कराने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बोटा खुर कोयटा रोड अहमियत की हामिल कौमी शाहराह है। NHA अफसरान ने 2 दिन में बोटा खुर शाहराह की तामीर और मुरम्मत की यकीन दहानी कराई है। जिला इंतजामिया और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कौमी शाहराह कोयटा रोड बोटा खुर पर ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिर सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम कर रही है। आज हमने इस वजह से विज़िट किया है कि हमें बहुत ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही थी कि यहाँ आए दिन ट्रक वगैरह उलट रहे हैं। ये एक ही हमारी बैनुसबाई शाहराह है जहाँ से बड़े पैमाने पे जितनी भी हमारी मूवमेंट है वो यहाँ से होती है। अगर रोड ख़राब होगा तो ऑब्वियसली उसमें हमारी ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी लॉस है, हमारी कीमती जानों के ज़िया का भी खदशा है। तो हमने आज विज़िट किया, उसमें हम देखा इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हमने आज इस मैटर को टेकअप किया NHA के साथ। उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि उनको तकरीबन कोई 8 करोड़ की ग्रांट मिल गई है, जिससे आज ही उनका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मोबिलाइज हो गया और इसका रिपेयर वर्क स्टार्ट हो गया है। उम्मीद करता हूं कि इसके जैसे ये काम कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह हमारी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की हिदायत पर कौमी शाहराह कोयटा रोड पर ट्रैफिक की रवानी के लिए फोर्स और हैवी मशीनरी तैनात कर दी गई है। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, फोर्ट मनरो, कोहे सुलेमान।